Assalamu alaikum students, I hope all of you are doing good. So till our last video we discussed about the optical isomerism and we covered the first type of the isomerism and that type was the stereoisomerism. In this video we are going to have a detailed discussion about the structural isomerism and its different types. So structural isomerism is basically the isomerism in which the isomers have the same molecular formula but different structures or the different structural formula. So we are going to look at the different types of the structural isomerism, that how compounds have the same molecular formula but they can have the variable structures or they can have a number of different structures. So basically the structural isomerism has 5 different types and the very first type is the chain isomerism. So chain isomerism is defined as the compounds or the chain isomers are the compounds which have the same molecular formula but differ in which the carbon atoms are bonded to each other. So the difference lies in the bonding of carbon atoms. For example, you have the case of N-butane and isobutane. N-butane में देखिए कि आपके पास एक लीनियर चेन है जिसमें 4 कार्बन एटम्स अरेंज्ड हैं, लेकिन यही अगर आपके पास बॉन्डिंग चेंज हो जाती है कार्बन एटम्स की और एक कार्बन आपके पास चेन में प्रेजेंट है, ये चेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये किस में कैटेगराइज होगा? चेन आइसोमर में। ठीक है, सो चेन आइसोमेरिज्म में आपके पास चेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है या जो कार्बन एटम्स होती हैं वो डिफर कर रही होती हैं अबाउट देयर बॉन्ड, ठीक है, द पोजीशन वेयर दे आर अरेंज टू द अदर कार्बन एटम। ठीक हो, सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2 डाइमिथाइल, इट्स प्रोपेन. So 2 dimethyl, you are going to write propane, P R O P. If you don't mind my writing, it's propane. Okay, so you have to mention propane. So we have the 2-methyl butane. You can see 2-methyl butane at position number 2. This was the carbon number 1. So at position number 2, you had a methyl group attached to the butane. And in the case of propane, you have the 2,2-dimethyl. At position number 2, you have 2 methyl groups or 2 methyl groups. So now here it was only one carbon atom which was bonded to second carbon atom, and now at this point this carbon number 2 has 2 carbon atoms attached to it. So overall you can count the number of carbon atoms, you can count the number of hydrogen atoms, the number of carbon atoms, the number of hydrogen atoms, they are same. So the molecular formula is same, but the difference lies in their structure. So this was about the chain isomers, that these are the isomers which have the same molecular formula but they differ in the arrangement of carbon atoms. The second type is about the position isomerism. Position isomerism is defined as the isomers which have the same molecular formula but differ in the position of functional group. So you have to memorize these red lines that this isomer arises due to the difference in the position of functional group. Clear? कि functional group की position क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 ब्रोमोब्यूटेन है और 2 ब्रोमोब्यूटेन है तो इनमें डिफरेंस कहाँ आएगा कि 1 ब्रोमोब्यूटेन में देखिए कि कार्बन नंबर 1 पे आपके पास ब्रोमीन एटम अटैच है। अगर यही आप नंबरिंग देते हैं, देखिए 1 पे आपके पास क्या है? ब्रोमीन, तो नंबरिंग आप वहीं से देते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा होता है, इसलिए ये कार्बन एटम आपकी 1 कार्बन होगी जो ब्रोमीन के साथ अटैच है। सिमिलरली यू हैव 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो देखिए 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, देन वी हैव 3 एंड दिस इज आवर 4th. तो अब इस चेन में देखिए ब्यूटेन की ब्रोमीन की पोजीशन बदल गई है, उसने कार्बन 1 से खुद को अलहदा किया और अटैच हो गया कार्बन 2 पे, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं आया। कंपाउंड के जो कार्बन एटम्स हैं वो भी सिमिलर हैं, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो भी सिमिलर हैं, ब्रोमीन भी एक ही है दोनों में, लेकिन ब्रोमीन की पोजीशन का डिफरेंस आ गया है, वो 1 से चला गया है किस पे? 2 पे। सो अब ये क्या है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब ये इट गिव्स राइज टू द पोजीशन आइसोमर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एन प्रोपाइल क्योंकि एन है, इट मीन्स लीनियर चेन of the propyl alcohol. Propyl alcohol means you have a propane chain, 1, 2 and 3 carbon atoms, and with one of the carbon atoms you have alcohol attached. ठीक है, इसको हम प्रोपानोल भी कहते हैं। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में आइसो हमने पढ़ा है कि
चेन में होता है, आपके पास जो सेकंड कार्बन एटम है वहां पे अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा या OH अटैच करेगा खुद को। अब ओवरऑल कोई पोजीशन में डिफरेंस, ओवरऑल कोई डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस है कि OH जो पहले पोजीशन 1 पे था अब वो चला गया है पोजीशन नंबर 2 पे। ठीक है, आप इसको 1 प्रोपानोल भी कह सकते हैं और इसको 2 प्रोपानोल भी कह सकते हैं, या आप इसको N प्रोपाइल अल्कोहल जैसे यहाँ मेंशन है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इट इज इन द पोजीशन ऑफ अल्कोहल ग्रुप। पहले वो अटैच था कार्बन नंबर 1 के साथ, अब ये कहाँ अटैच है, एट द कार्बन नंबर 2। तो अब पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की वो वेरी हो गई या वो चेंज हो गई, तो उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज हुआ उसको हमने कहा दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पीछे हमने पढ़ा था कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन या जो अटैचमेंट है कार्बन एटम से वो चेंज कर रहा था, लेकिन अब ये जो केस है इसमें पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। So these are the isomers which have the same molecular formula but different functional groups. Molecular formula सेम ही रहेगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो वेरी हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जी, एसीटोन और प्रोपायोन एल्डिहाइड की एग्जाम्पल है। एसीटोन में देखिए, एसीटोन में हमारे पास क्या है कि ये सेंटर जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों तरफ आपके पास 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। कीटोन की सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एसीटोन हमारे पास। तो प्रोपायोन एल्डिहाइड में देखिए कि प्रोपायोन एल्डिहाइड ये जो पोजीशन थी, अगर हम इसको 1-2 नंबरिंग करके लिखें तो कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे था, पोजीशन 2 पे था। ठीक, कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड अटैच था ऑक्सीजन। लेकिन अब अगर हम देखते हैं फॉर प्रोपायोन एल्डिहाइड, तो अब आप देखते हैं कि पोजीशन 1 पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है पोजीशन 1 पे। ठीक हो गया, तो अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, ओवरऑल अगर आप काउंट करते हैं तो कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन नंबर सेम है, ऑक्सीजन नंबर सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो इन केस ऑफ एसीटोन वो पोजीशन 2 पे है। कीटोन्स में हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन होती है उसके दोनों तरफ कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स में एसेंशियली एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन एटम अटैच होती है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आपने याद रखना है। तो ये हो गई हमारे पास पहली एग्जांपल। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल, वो है एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट। एसिटिक एसिड सिंपलेस्ट एंड द कॉमन फार्मूला जो बचपन से आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक हो गया। मिथाइल फॉर्मेट क्या है, मिथाइल फॉर्मेट इज सिंपली कि आपने जो ये पोजीशन थी ऑक्सीजन की जो कि यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ से आपने ऑक्सीजन को हटाया और ऑक्सीजन को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक हो गया, या अगर आप यूं कहते हैं कि आपने CH3 वहां ले गया और हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस कर दिया, तो सिंपली आपने ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच था उसकी पोजीशन बदल दी। ऑक्सीजन के साथ एसिड में क्या आता है, H। ठीक हो गया, ऐसे ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो मिथाइल और ये जो बकिया पार्ट है ये पार्ट क्या है, फॉर्मेट पार्ट। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन नंबर सेम है, कार्बन नंबर भी देखिए हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, इसके बाद हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन नंबर भी सिमिलर है। सो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिमिलर है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट है या जो फंक्शनल ग्रुप है वो वेरी कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अराइज होता है। आपने डिफरेंस याद रखना है पोजीशन का और फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप में आपके पास पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। ठीक है, while in case of position isomer सिर्फ जो functional group की position है वो change हो जाती है। Now the fourth type we have is the metamerism. So metamerism is basically the type of isomerism which arises due to the unequal distribution of carbon atoms on either the side of functional group. So if you have unequal distribution of carbon atoms, as we can see in this case of the diethylamine and methyl propylamine, you can see that this is the NH part, amine, and on one side we have ethyl. So this is the ethyl part and this is the second ethyl part. So we called it as the diethyl because of the two ethyl groups and the central one is the amine part, diethylamine.
So if we have a similar molecular formula and we are going to draw another structure, this is for the methyl propylamine. So in case of methyl propylamine, you can look at the structure over here. This is your methyl, this is your amine part, and this is your propyl part. So the three carbon atoms which are propyl, this is your methyl, and this is your amine or the parent chain. So methylpropylamine and diethylamine both have the same number of carbon atoms, the same number of nitrogen atoms, the same number of hydrogen atoms. But the difference is the distribution of carbon atoms on both the sides of the functional group. So this is due to the unequal distribution, because here we have two carbon atoms on either the sides of NH, and here we have three carbon atoms on one side while one carbon atom on the other side. So that is why the isomerism, metamerism. So the type of isomerism which is metamerism, it arises, and it is due to the unequal distribution of carbon atoms. But you have to remember that members belong to the same homologous series. So the same homologous series mean that both of these were amine, but the only difference was in the position of the carbon atoms, or the unequal distribution of carbon atoms on the different sides of the functional groups, or on the either side of the functional group. Let's have another case. This is for the 2-pentanone and 3-pentanone. So for the 2-pentanone, you can take this example that at position number 2 you have C double bond O. It is a ketone species because we have carbon atoms on both the sides of carbonyl group. C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए क्या है, ये कीटोन है। और कीटोन की कौन सी टाइप है, 2-पेंटानोन। ठीक, अब यही अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ से हटा के इस कार्बन नंबर 3 पे लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3-पेंटानोन। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल कैसे हुई कि एक साइड पे तो इसका एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक साइड पे कितने हैं, 3 कार्बन एटम्स है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं 3-पेंटानोन से तो इसके दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम्स की। अब इसी तरह जो थर्ड केस है ये है आपके पास डाइथाइल ईथर। डाइथाइल देखिए कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मिथाइल प्रोपाइल ईथर देखते हैं तो देखिए एच होगा इथाइल, सेंटर में आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, और जो पेरेंट नेम है या जो स्पीशी नेम है वो क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन नंबर सिमिलर था, कार्बन नंबर सिमिलर है, हाइड्रोजन नंबर सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल का वर्ड आपने नहीं भूलना कि कार्बन एटम्स फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस या फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो कार्बन एटम्स का नंबर है वो डिफरेंट होगा। Then we have a last type. This is the tautomerism. So tautomerism is defined as the compounds which simultaneously exist in two equilibrium states. ठीक है, tautomerism हम क्या कहते हैं, tautomerism को कैसे डिफाइन करते हैं, that which exist simultaneously in two forms. For example, you have the example of keto form and the enol form. तो keto form में देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के अक्रॉस दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम्स। सो ये क्या है, कीटोन स्पीशी है। कीटोन में आप देखिए इनोल में कैसे कन्वर्ट होता है कि डिफरेंस कहाँ आता है आपके पास, द डिफरेंस लाइज इन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की पोजीशन बदल दें, इस कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन है, अगर इसको मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के मैं यहाँ लिख दूं तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करती है, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, वो अटैक करती है इस हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है, जब हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड बनता है तो कौन सी फॉर्म होती है, इनोल फॉर्म। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना और इसके अलावा OH या फंक्शनल ग्रुप OL प्रेजेंट है। ठीक है, अल्कोहल से OL, तो ये क्या है, कीटो फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हुई है आपकी इनोल फॉर्म में। ठीक, डिफरेंस कहाँ पे आया, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की पोजीशन में डिफरेंस है। एक तरफ आपके पास वो कार्बन के साथ प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम, जबकि सेकंड केस में वो हाइड्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड माइग्रेट कर गया है फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन टू दी कार्बन कार्बन। अब ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम पे को एग्जिस्ट करती हैं।
And there is a continuous shifting of proton from the oxygen to the carbon and from carbon to the oxygen. So this type of isomerism is known as the tautomerism. Important बात जो याद रखने वाली है वो क्या है कि मोबाइल हाइड्रोजन इम्प्लॉय होता है. मोबाइल हाइड्रोजन, it is continuously resonating between carbon and the oxygen. ठीक है. So this was all about the structural isomerism. We have completed the 5 types. And the last type we have discussed is the tautomerism. And we talked about the example of tautomerism, keto and enol form, and we have also discussed the mobile hydrogen. So this was all about the isomerism. Now the topic of isomerism is complete. I hope you will give it a thorough reading.